اس کے لیے بھی ہوگی انشاءاللہ. آپ بات کیجیے. کراچی شہر آپ سب نے دیکھا کہ ہمیشہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا، چاہے وہ 2013 کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ 2018 کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ 2024 کے الیکشنز ہوں. لیکن جو چینج ہم نے 2024 کے اندر دیکھا، اس بات کو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس طرح عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ شہر کراچی تو ہے ہی پاکستان تحریک انصاف کا شہر، لیکن آپ نے دیکھا کہ سیٹیں تو انہوں نے چھین لی اور اپنا تماشا بھی لگا لیا اور فارم 47 کے بیسس کے اوپر یہ آ کے اقتدار کے اندر بھی بیٹھ گئے. لیکن کراچی والوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے گریبانوں کو تو پکڑو. جس طریقے سے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جس طرح شہر تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 15 سال سے اقتدار کے اندر ہے، یہ 16واں سال ان کا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ 7واں دور ان کا ہے، لیکن اس شہر کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے. یہ جلسہ جو خاص طور پہ رکھا گیا ہے، جو ہماری سندھ کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ شہر کراچی کے اندر جلسہ رکھا ہے، یہ جلسہ کراچی والوں کی خواہشات کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا ہے. کراچی والے آج جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کراچی کے اندر کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، کراچی کے اندر کوئی بڑا جلسہ ہونا چاہیے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو جلسہ کراچی کا ہونے جا رہا ہے، یہ کے جتنے بڑے جلسے آج تک ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیشہ جلسے ہوئے ہیں، یہ وہ تمام ریکارڈ توڑیں گے، تمام ریکارڈ یہ توڑیں گے. اس کے اندر آپ ہر زبان سے بولنے والے لوگ دیکھیں گے، کیونکہ یہ واحد جماعت ہے تحریک انصاف جس کے اندر ہر زبان بولنے والا آپ کو نظر آئے گا، وہ اس کا حصہ ہے. یہ جلسہ ثابت کرے گا اور یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل نہیں، ساؤتھ نہیں، ایسٹ ویسٹ کے ماڑی کورنگی نہیں، پورا شہر یہ جیتی تھی. آپ پورے شہر سے ریلیاں نکلتے ہوئے دیکھیں گے. پورے شہر سے انفیکٹ جو ہے ذمہ داریاں لگ چکی ہیں. جتنے بھی ہمارے ایم این ایز تھے جو فارم 45 کی بیسس پہ جیتے ہیں، اس پہ ان کی ذمہ داری ہمارے کراچی کی قیادت اور سندھ کی قیادت نے لگا دی ہے. یہ ریلیز کی شکل میں ہر حلقے سے عوام کے ساتھ ہم نکلیں گے. اگر میں نکلوں گا تو میں اپنے گھر سے، اپنے حلقے سے نکلوں گا اور اپنی عوام کے ساتھ نکلوں گا اور یہاں جلسہ کہاں پہنچوں گا. اسی طریقے سے تمام جتنی بھی شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے ہمارے پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے جو ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز ہیں، ان کو بھی یہی احکامات دیے گئے ہیں قیادت سے کہ سب نے جو ہے وہ اپنی عوام، اپنے ووٹرز کے ساتھ نکلنا ہے. میرے جو ووٹرز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی 3 تلوار پہ اکٹھا ہوں گے اور 3 تلوار سے ہم ایک ریلی کی شکل میں جو ہے مزار کاج پہ انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے. میں آخر میں پورے کراچی کو دعوت دے رہا ہوں کہ پورا کراچی 28 اپریل کو نکلے اور یہ ثابت کرے، یہ پیغام دے اس پورے شہر کو کہ یہ پورا شہر جو ہے وہ تحریک انصاف کا شہر ہے. ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں. ایک طرف تو ہمیں کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے، دہشت گرد ہیں تحریک انصاف کے اندر، لیکن کیا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود جب ہم قانونی پروسیس میں جاتے ہیں، انتظامیہ سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں اجازت دی جائے، 3 درخواستیں ہم ڈی سی ایسٹ کو دے چکے ہیں، لیکن مجھے کم ظرفین کی سمجھ نہیں آتی حکومت کون سی بخلاہٹ کا شکار ہے. وفاقی حکومت جو چور مینڈیٹ پہ بیٹھی ہے کون سی بخلاہٹ کا شکار ہے. جب آپ کو تحریک انصاف سے خوف نہیں، جب آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کراچی کے اندر نہیں ہے، سندھ کے اندر نہیں ہے، پاکستان کے اندر نہیں ہے، تو چور وزیر اعظم صاحب اور چور مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، تو پھر آپ ہمیں پرمیشن کیوں نہیں دے رہے؟ کیا ہم ہر چیز کے لیے اب جو ہے کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائیں؟ کورٹ کے دروازے تو انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام کے لیے ہیں اور ہم انصاف لے رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ 28 تاریخ کو کراچی کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے. صرف ہم نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی. کراچی نکلے گا تو خان نکلے گا، کراچی دیتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. کراچی نے ہمیشہ ہر تحریک میں حصہ لیا. آپ جتنی بھی ماضی کے اندر تحریک دیکھیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حقیقی آزادی کی تحریک ہو، بانی قائد کو نکالنے کی تحریک ہو، قیدی نمبر 804 کو نکالنے کی تحریک ہو اور کراچی نہ نکلے؟ انشاءاللہ تعالی جلسہ تو ہوگا، ہو کے رہے گا. میں امید رکھتا ہوں کہ انتظامیہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے گی. آصف زرداری صاحب جمہوریت کا دعویٰ لگانے والے، نعرہ لگانے والے، ہمت ہے تو ہمیں اجازت دو، دینی تو پڑے گی. انشاءاللہ ہمیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا.
जलसा भी करेंगे, यहाँ पे आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ भी उठाएंगे और कामयाब जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना माजी का रिकॉर्ड तोड़ने इंशाल्लाह जारी। आवाम से गुजारिश करते हैं, सब माओ बहनों जवानों बुजुर्गों ने निकलना है, 8 फरवरी की याद को ताज़ा करना है और बताना है खान साहब हमें इंशाअल्लाह ताला जेल से देखेंगे कि वाकई कराची ने हमेशा जो वादा किया है, जो जबान दी है, उसने जलसे में आके साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कराची खड़ा है। बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि आप लोगों ने ये प्रोसेस में चीज़ें डाली हुई है कि हमें इजाज़त दी जाए, अगर इजाज़त नहीं मिलती तो अगला आपका लाहेअमल क्या होगा? अगर हुकूमत की जानब से कुछ गिरफ्तारियाँ आती हैं, जो कुछ ऐसा रद्दअमल आता है तो उस पर पीटीआई जो है उसकी क्या तैयारी है? दो बातें आप कर रहे हैं कि एक तो पहली वाली बताता हूँ, गिरफ्तारियां होती हैं तो मेरा ख्याल है हम गिरफ्तारी प्रूफ हो चुके हैं, हम सब ने अपने बैग गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं। तो गिरफ्तारी सिर्फ पहले आप लोग कहते थे, आप लोग नहीं, लोग कहते थे कि पता नहीं ये क्या है, कोई कहता था तितलियां हैं, कोई कहता बर्गर है, कोई कहता था कुछ है। अब पता चल गया कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स लोहे के चने हैं जो किसी से अल्लाह ताला ने हमें खड़ा कर दिए, लोहे के चने हैं सारे। तो गिरफ्तारी ये प्रूफ हो चुके हैं। 100 लोग गिरफ्तार हुए, हमारे यहाँ मौजूद हैं, 100 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं है जी? और दूसरी बात, हमें जो अदालत हमने लगाया, हमारा कानूनी आईनी हक है। हमने किसी रोड पे नहीं कहा, किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं कहा, हमने एक जलसा गाह में जलसा मांगा है और गुज़िश्ता रोज जो प्रोसीडिंग अदालत की हुई है, हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह हमें परमिशन जरूर मिलेगी। और परमिशन क्यों नहीं मिलेगी, परमिशन जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। और हम समझ रहे हैं कि परमिशन हमें मिल चुकी है, चूंकि हमारा आईनी हक है। हम एक ग्राउंड में जा रहे हैं, हमारे जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, जलसा होगा इधर ही होगा। जितना सिंध हुकूमत रोकेगी, बिलावल जरदारी बेनकाब होंगे, आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी, मुराद अली शाह जो अपने आप को जमहूरी जमात कहते हैं, पता चलेगा कि ये सिविलियन डिक्टेटर्स हैं, ये एक खौफजदा है पीटीआई से। तो इंशाल्लाह परमिशन मुझे उम्मीद मिलेगी। अभी हम ग्राउंड को चेक कर रहे हैं, हम सब मिलके हमने अभी आज फाइनल करनी है, वेंडर्स वगैरह हमने सब कर लिए हैं, झंडे बैनर वेंडर स्कीम सब काम शुरू हो चुका है। कराची वाले आने की तैयारी करें और आप कवरेज की तैयारी करें, यही जगह इंशाल्लाह नहीं इसी जगह जरूर। दुआ के साथ बात की है, क्या आप आईजी सिंध जो दोबारा से लगे हैं उस पर कोई कागजात रखते हैं? जो एक सियासी जमात इस पर ताकत अपना जाहिर कर दे चुकी है, इस हवाले से भी बता दीजिए। बात यह है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वो गवर्नर बना दिया गया, सुना उनको, मकबूल बाकर साहब को, उनको जनरल इलेक्शन में बेईमानी मैंडेट चोरी की चीफ सरपरस्त आला मकबूल बाकर साहब को इनाम में गवर्नरशिप दे दी गई है। आवे का आवा ही बिगड़ा है, सारा टब्बर ही चोरों का है। क्या आईजी को कहें, क्या चीफ सेक्रेटरी को कहें, सारे ही एक हमाम में, सारे ही बस अल्लाह को पूछे। इंशाल्लाह कप्तान तो होगा, जल्दी सिंध में भी तहरीक इंसाफ होगी, फिर एक एक से हिसाब किताब कर लेंगे इंशाल्लाह। जी चलें। आप लोग कह रहे हैं कि कराची देता है और ज्यादती भी होती है, लेकिन आप लोगों के दौर में कराची को कुछ नहीं दिया गया, न पानी का मंसूबा, न बिजली का, कुछ भी नहीं मिला। आप लोग जब पोजीशन में आते फिर कराची एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो आप लोग कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन उसमें भी तो कराची के साथ धोखा हुआ और एमक्यू वाले कहते हैं कि अब हमने अपने मैंडेट वापस ले लिए। दोनों सवाल का जवाब। पहले तो बात यह है कि पता नहीं हाफजा हमारा क्यों कमजोर होता है। शहर 4 बूंदें पड़ती थी, बारिश आता था, पानी आता था तो पूरा शहर गटरों में डूब जाता था। वो नाले इमरान खान ने बनवाए, 3 बड़े नाले, औरंगी नाला, गुजर नाला, अहमदाबाद नाला। K4 के ऊपर 100 अरब से ज्यादा फंड्स की एलोकेशन इमरान खान ने की। ग्रीन लाइन का इफ्तिताह इमरान खान ने किया। सर्कुलर ट्रेन का इफ्तिताह KCR का इमरान खान ने किया। फ्रेट टर्मिनल इमरान खान ने किया। नश्तर रोड, निपियर रोड, ये सारे बड़े बड़े मंगोपीर रोड, ये बड़े बड़े ब्रिजेस इमरान खान ने बनाए। इमरान फायर ब्रिगेड, बिलावल हाउस की आग लग रहे हैं, बिलावल हाउस की आग भी हमारी फायर ब्रिगेड ने बचाई। कोऑपरेटिव मार्केट को आग लगी, अपने पैसों से इन लोगों ने बना के दी। मैं कहना चाहता हूं, हमें तो काम नहीं करने दिया गया। 18वीं तरमीम लटक रही थी और 2 साल कोरोना भी आ गया, फिर भी जो 15 साल में नहीं कर सके वो 3.5 साल में हमने किया, सवाल दे चुके हैं। दूसरी आपने बात की 2018, भाई ये इनकी बोलती इसलिए बंद हो गई है, पता चल गया कि 18 में भी हमारी 5 सीटें इनके पास चली गई थी। इस दफा तो सब निकले हैं ना,
इस दफा तो जो लोग जीते हैं वो शर्म के मारे होटल में नहीं बैठ सकते हैं। 18 में भी हमारी 18 सीटें थी, 4 चोरी करके इनको दे दी गई थी। मुत्तहिदा ना जिक्र करे, ना कोई उनका नाम सुनना चाहता है, ना किधर वो आना चाहते हैं। और वो कामरान डिसोरी की, मुस्तफ़ा कमाल की वो लीक्ड वीडियो सब देख चुके हैं। जब खुद ही सबको पता हो तो अब इसमें बात नहीं है। इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में 180 सीटें और हमारी हैं बस। अच्छा, एक और सवाल सर, ये आपको चार पठान नजर आते हैं, लेकिन आप लोग की जो कराची की मरकजी वो है, इसमें पठान लीडर बहुत कम दिखते हैं, वजह क्या है? बड़े अफसोस की बात है, हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में पश्तून भी है, बलोच भी है, महाजिर भी है, सिंधी भी है, कश्मीरी भी है, गिलगित बल्तिस्तान का भी है। खूबसूरती ये है कि अगर यहाँ हमारे इस वक्त 100 लोग मौजूद है ना, इसमें एक सूबे की नुमाइंदगी मौजूद है। तो बराए करम इस नफरत ने, इस लिसानियत ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरेशन पे, हुब्बुल वतनी पे, यकसानियत पे यकीन रखती है, लिसानियत पे यकीन रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी लीडरशिप में सब मौजूद है। आप फिक्र ना करें, हमें पता है। नफरत की बात नहीं है, जिस जगह रहते हैं सर, कराची में जो है 2 कौमियतें हैं, वो सबसे ज्यादा है, उर्दू स्पीकिंग, उसके बाद पठान भी, बाकी लोग भी हैं, लेकिन ये ज्यादा नजर आते हैं। आप लोग के जलसों में मार खाते हुए भी और मारते हुए भी यही लोग नजर आते हैं, लेकिन आपकी मरकजी क़यादत में मतलब अगर नाम है तो नाम बता दें कि हाँ ये लोग। बराए करम इस पे डाइवर्ट ना करें, हम इसमें यकीन नहीं रखते। इसको पहुंचा के आप लोगों ने ANP, PPI, MQM, GSN जो बना दी, अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान को जोड़ने दे। इमरान खान सबको जोड़ने वाली सोच को हम पनपने नहीं देंगे इंशाल्लाह। PTI छोड़ दिया है, उनको भी क्या इस जलसे में दावत दी है आने की? उनके लिए माफी का कोई है, इरादा रखती है PTI? अगर उनको हम बुलाएं, इनसे ज्यादती होगी। मेरे सामने काफी सारे कैदी नजर आ रहे हैं, असीर नजर आ रहे हैं। वो लोग जो अपना इमरान खान के साथ छोड़ के चले गए, और मैं बड़े वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, अगर लोग 9 मई के बाद सूखे पत्तों की तरह ना गिरते, पार्टी ना छोड़ते, शायद खान साहब गिरफ्तार ना होते। किसी के लिए पार्टी की जानिब से जिन्होंने गद्दारी किया उन्हें गद्दार तस्वर करते हैं। किसी को ना दावत दी जाएगी, ना खुद किसी को बिन बुलाए मेहमान बनना चाहिए। कारकुन नाराज हैं। थैंक यू सर। ग्राउंड चेक करने पहले फातिहा करें। ये ग्राउंड पे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये ग्राउंड पे चलते हैं, बागी जी।